Good afternoon, students. Again, I am taking the same topic involving simplification of expression involving fractions and decimals. आप फ्रैक्शन और डेसिमल्स में किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने बॉर्ड मैथ्स यूज करके हाउ वी सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स कल भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. Again, I am repeating the same topic and I am taking your third question, and one part I have taken yesterday and second part I am taking now. Third का second part वो मैं ले रही हूँ. You will open your notebook and book also and see the question, see the statement in your book. Your second part third का दे रखा है 1/2 plus 1/3. Okay, and now divide sign is given between two brackets, and here it is given 1/4 minus 1/6, and now minus is given, rectangular bracket is there. ये सबसे जो बड़ी ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है. So 8 minus, now curly bracket start, 5 is to 1/3. Before the curly bracket, one sign is given minus here. And minus, now common bracket is given 3 minus 2 is to 1/2. Common bracket close, then curly bracket close, then rectangular bracket close. पहले क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं कि is there any mistake or not. 1/2 plus 1, then divide sign is given, 1/4 minus by 6, then minus sign is given, then rectangular bracket start, 8 minus curly bracket 5 is to 1/3 minus 3 minus 2 is to 1/2, then all the bracket close. Now how we will simplify this question. मैंने with the rule of board maths आपको solve करना बताया था कि when the bracket came in the question, then we have to first solve the bracket, and bracket is also solved one by one. First the shortest bracket is line, then common bracket, then curly bracket, and then at the last rectangular bracket is there. Now in this question, what we see in this question, first in this bracket you have given the sign. आपको कौन सा साइन दे रखा है, यहाँ पर प्लस साइन is given. So when the two fraction are given in the positive sign, then you have to take the LCM, and LCM of 2 and 3 is 6. So you divide the denominator, 6 को 2 से divide करेंगे, then it become 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3. और when you divide 6 by 3, 3 2 जा 6, और when you multiply it by 1, it become 2. Okay, now divide. ये भी आपको ब्रैकेट दे रखी है, और ब्रैकेट के अंदर जो साइन दे रखा है वो माइनस का दे रखा है. तो you have to take the LCM. When you take the LCM of 4 and 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. Now 2 और 3, it is not divisible by the one table. ये एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो you can directly multiply all these three numbers. 2 2 जा 4, 3 जा 12. So LCM of 4 and 6 is 12. So you put here 12. So आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है इसको. 12 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, और 3 1 जा 3. नाउ माइनस 12 को 2 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 2 1 जा 2. यहाँ तक क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन. नाउ माइनस, सबसे पहले हम कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये जो कॉमन ब्रैकेट है, क्योंकि लाइन तो दे नहीं रखी है लाइन ब्रैकेट. सो यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे. तो कॉमन ब्रैकेट कैसे सॉल्व होती है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूंगी.
3 5 जा 15 प्लस 1, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 5 जा 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 3, माइनस 3 माइनस 2 2 जा 4 और 1 5 अपॉन 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। और लेकिन अभी आपकी कॉमन ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई है, अभी सिर्फ मैंने क्वेश्चन को मिक्स से किस में चेंज किया है, इम्प्रॉपर में चेंज किया। स्टेप वाइज वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ अगला स्टेप आप क्या करोगे नेक्स्ट लाइन में। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई आपकी, 3 + 2 5 अपॉन 6 आ गया आपका, ठीक है। और डिवाइड 3 में से 2 चला गया, 1 अपॉन में 12 आ गया। नाउ दिस ब्रैकेट इज सॉल्व नाउ। ओके, नाउ इन दिस ब्रैकेट, आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे आप। नाउ यू टेक द एलसीएम, क्योंकि 3 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप 2 एलसीएम लेंगे, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, और 2 3 जा 6 -5। अभी भी आपकी ये ब्रैकेट रिमूव नहीं हुई है, अगले स्टेप में आपकी ये ब्रैकेट रिमूव होगी। और अब आप इस क्वेश्चन में अगर डिवाइड दे रखा होता तो डिवाइड का रूल क्या है, आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। 16 अपॉन 3 माइनस 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया आपका 1/2। नाउ योर कॉमन ब्रैकेट इज क्लोज नाउ। अब आपकी कॉमन ब्रैकेट क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 5 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 12, 8 माइनस, नाउ यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 2। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। और व्हेन यू डिवाइड 6 by 3 यू विल गेट 2। 3 2 जा 6 होता है ना, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, एंड 2 3 जा 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, ये समझ आया 32 कैसे आया। 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया है, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, आपका क्वोशंट क्या आया, 2 आया। 3 2 जा 6, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 32। नाउ आपकी करली ब्रैकेट भी अब इस स्टेप में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कैसे खत्म हुई, 32 3 सब्ट्रैक्ट करना है 32 से, इट बिकम 29 अपॉन 6। अब आपकी करली ब्रैकेट भी क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। नाउ अब आपको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी खत्म करनी है। नाउ यू विल टेक द एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता, यू विल पुट द नंबर हियर 1। सो 6 और 1 का एलसीएम क्या आ गया आपका, 6 आ गया। 6 8 जा 48 माइनस 29। सो आपका यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, 5 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 12 माइनस 29 सब्ट्रैक्ट करो 48 में से, 18 में से 9 गया 9, 3 में से 2 गया 1। नाउ ये आपका माइनस है, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। तो हाउ यू विल सॉल्व द डिवाइड नाउ, आप डिवाइड को कैसे सॉल्व करोगे, डिवाइड के जो बाद वाला नंबर होता है उसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 5 अपॉन 6 और 1 अपॉन 12 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 1। न्यूमरेटर बिकम द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम द न्यूमरेटर, उल्टा हो जाता है, ठीक है। माइनस 19 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, नाउ 5 2 जा 10 माइनस 19 अपॉन 6। नाउ 10 के नीचे फिर डिनोमिनेटर आपका क्या है, 1 है। सो 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। जब कभी भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है, फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम। सो 6 10 जा 60 माइनस 19। नाउ 60 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 41 अपॉन 6। नाउ यू हैव टू चेंज दिस क्वेश्चन, 41 अपॉन 6 को आपको किस में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है।
because your numerator is greater than the denominator. So 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 भी चला जाएगा, ठीक है, और 11 में से 6 चला गया 5. Now you will write the answer like this way: 6:5/6. You will please be note down in this question in your notebook because you have to complete your copies thoroughly. आपको अपनी कॉपी जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है. तो आप हर एक क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया है आपने उसी तरह से अटेम्प्ट करना है. वेयर आई पुट द साइन, वेयर आई कीप, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सिमिलर टू का निशान लगाना, मैंने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपने प्रॉपर वे से अपनी कॉपी बनानी है. ओके, वेरी नीट एंड क्लीन. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. I will give you 1 minute. You will please note down this question. And at the end, you again see the video and note down this question also. Now see in the next question, it is given when in the bracket some decimals are given. How you will solve, how you will simplify that question? The fourth question, first part, 2.3 minus curly bracket start 1.89. Now decimal is given. और अभी आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे उसमें फ्रैक्शन दिया हुआ था, अभी आपको डेसिमल दे रखा है. 1.89 minus, now this is the rectangular bracket, 1.89. Now curly bracket start 3.6, again minus is given, and 2.7 minus 0.8 minus 0.03, और 0.8 और 0.03 के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसे लाइन ब्रैकेट कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? लाइन ब्रैकेट. इसे मैं डार्क कर रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन. 0.8 minus 0.03. Now common bracket close, curly bracket close, and rectangular bracket is closed here. Now how you will solve this question now? आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? बिकॉज सबसे छोटी ब्रैकेट लाइन इज गिवन है, और लाइन ब्रैकेट किसके ऊपर दी हुई है? लाइन ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, और 0.8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.03 सब्ट्रैक्ट करना है. तो फर्स्ट यू विल सॉल्व. 0.8 में से 0.03 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट का मैंने रूल बताया था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो. ठीक है, तो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे? यहाँ से 1 कैरी किया, 10 बन गया, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 0 गया 7, और ये तो 0.77 आप लिख ही सकते हो. तो सबसे पहला पॉइंट, आपने इस लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया, और आपने कैसे लिखा इसको मैं आपको लिखना बता रही हूँ. 2.7, ये लाइन ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, और नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 0.03 फ्रॉम 0.8, इट बिकम 0.77. नाउ आपकी लाइन ब्रैकेट क्या हो गई है? सॉल्व हो गई.
आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। नाउ सेकेंड ब्रैकेट इज यू हैव टू सॉल्व द कॉमन ब्रैकेट नाउ। तो 2.7 माइनस 0.77, पॉइंट के नीचे मैंने कहा है कि पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। डेसिमल के नीचे हमेशा क्या आता है, डेसिमल आता है। और आप डेसिमल के बाद यहाँ पर लाइक टर्म बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है और ऊपर 1 प्लेस था, तो उसको भी लाइक टर्म बनाने के लिए, लाइक डेसिमल बनाने के लिए यू कैन पुट द 0 हियर, आप यहाँ पर 0 पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कैरी करके पहले यहाँ दे दिया, तो यहाँ 6 रह गया। 10 में से 7 चला गया, 3 आ गया, 6 में से 7 नहीं जाता तो 1 कैरी करके दिया, 16 में से 7 चला गया 9, और यहाँ 1 का 1। तो आपका जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आपका क्या आ जाता है, 1.93 आ जाता है। तो आप इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 2.3 माइनस, हाउ वी सिंप्लीफाई द डेसिमल इन दिस क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हाउ वी सिंप्लीफाई द डेसिमल, ठीक है। 2.7 minus 0.77, it is equal to 1.93. Okay, now next step, how we will complete our next step now. 2.3 minus 1.89 minus 3.6, और ये है आपका 1.93। मैंने आपको बताया कि डेसिमल कैसे पुट करना है, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल और लाइक टर्म बनाने के लिए आप बाद में 0 पुट कर सकते हो। सो यहाँ पर 1 कैरी करके इसे दिया तो ये 10 बन गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ आपका 5 रह गया। नाउ यहाँ 3 में से कैरी करके 5 को दिया तो 15 बन गया, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 2 रह गया था, 2 में से 1 चला गया, तो आपका क्या रह गया, 1। क्या सब्ट्रैक्ट, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 इज लेफ्ट हियर, सो 1.67, 3.6 minus 1.93, it is equal to 1.67. now your curly bracket is also finished now. अब आपकी कर्ली ब्रैकेट भी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब आपको क्या खत्म करना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट फिनिश करनी है। तो 1.89 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1.67 सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 7 चला गया 2, 8 में से 6 चला गया 2, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया, 0.22। नाउ हाउ यू विल सब्ट्रैक्ट, 2.3 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0.0 डेसिमल दे रखा है 0.22। तो मैंने आपको बताया ना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पर लाइक टर्म बनाने के लिए यू कैन पुट द 0 ऑल्सो। सो नाउ कैरी 1 from 3 और 2 is left here and it become 10. 10 में से 2 subtract किया 8, 2 में से 2 चला गया 0 and 2 में से 0 गया 2. So your answer of this question is 2.08. Now note down this question please. Note down this question. कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द लाइन ब्रैकेट हियर। मैंने लाइन ब्रैकेट सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया, 0.77। उसके बाद कॉमन ब्रैकेट सॉल्व किया, 2.7 में से 0। मैंने साथ साथ आपको सब्ट्रैक्ट भी करना बताया कि डेसिमल को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, ऐड भी इसी तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी इसी तरह से करते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। इफ the like term is not given in the question, तो how you will make the like term, किस तरह से बनाते हैं आप, डेसिमल के बाद किस तरह से 0 पुट करके उसे like term मैंने बनाया हर एक पार्ट में। 3.6 में से 1.93 सब्ट्रैक्ट किया तो 1.67 आ गया। अगेन 1.89 में से 1.67 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या आ गया, 0.22 आ गया। और अगेन 2.3 में से 30 में से 0.22 सब्ट्रैक्ट किया तो योर आंसर इज 2.08। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग।
आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को यहाँ समझो और बाद में लेक्चर देख के भी यू कैन कंप्लीट योर कॉपी ऑल्सो। See the next question. 4.5 फोर्थ का सेकंड पार्ट है। 4.5 माइनस हाफ ऑफ 7.6 माइनस 3.5 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 4.05। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। 4.5 माइनस हाफ ऑफ 7.6 माइनस 3.5 प्लस 2.3 इंटू 4.05। ओके, हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम क्वेश्चन यूजिंग द BODMAS रूल। सो फर्स्ट 4.5 minus half of means multiply and you have to subtract. You solve this bracket now. 7.6 minus 3.5, it become 4.1. So I change the sign of into multiply here and plus 2.3 को 4.05 से multiply करेंगे। First ignore the sign and you can multiply these two numbers. आप multiply next line में भी कर सकते हो क्योंकि अभी इस line में मैंने off को change किया और bracket को change किया। Now in the next line 4.1 को 2 से divide करना है क्योंकि यहाँ तो 1 है। 4.1 को 1 से multiply किया 4.1 और 2 को 1 से multiply किया, it become 2. Now plus 2.3 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को 405 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 5 जा 15 and 3 4 जा 12 and 2 5 जा 10 and 2 4 जा 8. So 5 1 3 and 9. और decimal, where you will put the decimal? Bhavya Bhatia, don't share the screen, please. Hello. Yes, first we have to multiply 405 by 23. आपको 405 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 23 से। तो it become 9315 and where you will put the decimal here while multiplying? पहले first you have to ignore the आपको इग्नोर करना है डेसिमल्स को, then you have to put the decimal 1 2, count the decimal where it is given 1 2 3. Before the count from the rightward side, right hand side से count करते हुए आपको decimal put करना है 1 2 3. तो decimal you can put here 9.315. Okay, now you have to divide 4.1 by 2. When you divide 4.1 by 2, 2 2s are 4. 2 2s are 4. You will put the decimal here and carry 1. 1 को आपने carry कर दिया, ठीक है? And decimal के बाद आप 0 put कर सकते हो और ये 0 carry भी कर सकते हो. When you carry the 2 digit together, जब आप इकट्ठे 2 digit carry करते हो, you will put 0 here and 2 5s are 10. Now 4.1 को 2 से divide किया तो आपका यहाँ पर क्या आ गया? 4.5 minus 2.05
plus 9.315. Okay. Now what you will do now, ये जो 4.5 है, यहाँ पर जहां कोई साइन नहीं दिया होता, where no sign is there, it means it is positive sign is given here. तो यहाँ पर कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन इज हियर. हेलो रजनी मैम. मैम, someone is sharing the screen. परमजीत is yes. ना परमजीत हो गया, नितिन हो गया, इनको ये बोल दो. Hello. Yes ma'am, yes, let's start. Continue ma'am. Okay. Now 4.5 minus, when you divide 4.1 by 2, it become 2.05. तो ये आपका क्या बन गया? 2.05. और किस तरह से मैंने 4.1 को डिवाइड किया? अगेन आई एम रिपीटिंग. When you divide 4.1 by 2, 2 2s are 4, and decimal you will put here and carry 1 here. आप डेसिमल के बाद 0 you can put, and when you are carrying the 2 digit together, जब मैंने 2 डिजिट इकट्ठे कैरी किए तो you will put here 0. So 2 5s are 10. Now it become the 2.05. When no sign is given, अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दिया, it means it is positive here. So when you add 4.5 प्लस 9.315 और बाद में सब्ट्रैक्ट करते हो 2.05, you will get the answer of this question. How you will add? 4.5 में क्या ऐड करना है आपको? 9.315. डेसिमल के नीचे मैंने डेसिमल रखा है, और किस तरह से ऐड करेंगे? आप डेसिमल के बाद 0 पुट कर सकते हो. सो नाउ ऐड दिस वन. ये आ गया आपका 13.815. क्या आ गया आपका? 13.815 माइनस 2.05. अब आपको माइनस करना है 2.05. तो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे? मैंने डेसिमल के बाद क्या लगा दिया है? 0 लगा दिया है. 5 में से 0 चला गया, 5. यहाँ पर 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कैरी कर लिया. 11 में से 5. योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11.65. ये जो आपको रफ काम करना है, ये सारा आपने एक्स्ट्रा शो करना है. ठीक है. 4.5 में मैंने पहले क्या प्लस किया है? 9.315. देन क्या सब्ट्रैक्ट किया है? 2.05 मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया है. नाउ योर आंसर इज 11.765 of this question. Now please note down this question, and the last question, fifth का 2 parts are given. Yes, your fifth question is simplify the following. आपको सिंप्लीफाई करना है. The first part of this question is 2:1/2 plus 1/5, and the second is 2:1/2 divided by 1/5. ठीक है. इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? पहले ऊपर तो दे रखा है प्लस न्यूमरेटर में, और नीचे दे रखा है आपको डिवाइड. तो आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले आपको इस क्वेश्चन को 2 2s are 4 और 1 5/2 1/5. न्यूमरेटर में आपकी प्लस 1/5. 4 में 1 प्लस करेंगे 5/2 डिवाइडेड बाय 1/5. ये आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस वन? You will take the LCM of numerator. 2 और 5 का LCM लिया तो क्या आया आपका? 10 आया.
Now divide 10 by 2. 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 plus 5 2 जा 10, 2 1 जा 2. Now डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? डिनोमिनेटर में ये आपको डिवाइड दे रखा है, तो आप डिवाइड के जो नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन होता है, आप डिवाइड को मल्टीप्लाई का साइन लगा के, और जो फ्रैक्शन है यू विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. नाउ न्यूमरेटर में क्या आ गया? 25 प्लस 2, इट बिकम 27 अपॉन 10. और आपका डिनोमिनेटर में क्या है? 5 5 जा 25 और 2 1 जा 2. नाउ 27 बाय 10 डिवाइडेड बाय 25 बाय 2 आ गया आपका. तो आप किस तरह से इसको, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे 25 बाय 2 का, क्योंकि ये डिवाइड में दे रखा है ना, तो यू विल टेक द रेसिप्रोकल. तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या आ जाएगा? 27 अपॉन 25, 5 जा 125. योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27 अपॉन 125. Again, I am repeating this question. See again. 2 is to 1 by 2. Change into the improper fraction. 5 upon 2 plus 1 upon 5. 2 2s are 4 or 1 5 upon 2 divided by 1 upon 5. ये पोर्शन न्यूमरेटर में दे रखा है, ये डिनोमिनेटर में दे रखा है. न्यूमरेटर में दोनों इक्वेशन प्लस में दे रखी हैं, तो यू विल टेक द एलसीएम. सो 10 is divided by 2. 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2s are 10, 2 1 are 2. And when you are change the division into multiply, you have to take the reciprocal of 1 by 5, that is equal to 5 upon 1. Now 5 5 ja 25 upon 2, और ये 25 plus 2, it is equal to 27 upon 10. Now when you are taking 27 upon 10 is divided by 25 upon 2, इसका ये मतलब है. So you will take the reciprocal of 25 upon 2. It is equal to 2 upon 25. So 10 is cancelled by 2. 2 1 ja 2, 2 5 ja 10. So 27 1 ja 27 and 25 5 ja 125. Note down this question. And the last part का आपका second part है इसका fifth का. Rajni ma'am, only 4 minutes are left. Okay, and now if the student have